Hey guys, good morning to all of you. Myself Kanchan Valija. Here, this is my first video on the Mendelian inheritance. That is the first scientific explanation regarding the inheritance was given by the George John Mendel. So, first of all, what is inheritance? Inheritance is the transfer of gene from one generation to its next generation. तो सबसे पहले हम इस टॉपिक में क्या क्या देखने वाले हैं वो देख लेते हैं. सबसे पहले हम उसमें देखेंगे मेंडल बायोग्राफी, हिज एक्सपेरिमेंट ऑन द गार्डन पी प्लांट एंड वाई ही सेलेक्ट द पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट एंड सम टर्मिनोलॉजिस्ट लाइक द हेरिडिटी, वेरिएशंस, जेनेटिक फैक्टर्स, फिनोटाइप, जीनोटाइप, एटसेट्रा. सो लेट्स स्टार्ट विद द मेंडल बायोग्राफी. He was born on the 22nd of July 1822 to the family of poor farmer in Austria. After graduation, he joined the Augustinian monastery of Brunn as a priest. He was sent to the University of Vienna for the mathematics and the natural sciences and the physics for his higher studies. On his return, he continued to the work as a priest and a teacher. In 1856, he began his famous hybridization experiment on the garden pea plant. उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया एज एन हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट. In 1865, he presented his work at the meeting of the Natural History Society of Brunn as experiment in plant hybridization. So the next, his experiment was published in the journal, but unfortunately his work remained unnoticed. He died in 1884 as the highly respected priest and teacher, but unrecognized as a scientist. John Mendel was the first one to say that the character transmitted from one generation to its next generation through particles, which he called as factor, that are now known as genes. Mendel was the genius much ahead of time, as he has given this concept of the factors before the discovery of mitosis, meiosis, chromosomes, and without the use of microscope. Now, in 19s, his findings were rediscovered by the three scientists, that is the Hugo de Veris, Carl Correns, Rees Kermek. Hugo de Veris, Carl Correns, Rees Kermek. This scientist realized Mendel's work, and hence, based on his findings, they established three laws in genetics. Three laws in genetics. Now, these laws are known as the Mendel's law of inheritance. Hence, Mendel known as the father of genetics. So now, what is genetics? 3 बार आ चुका genetics. Genetics is the branch of biology that deals with the study of the heredity and the variations. अब heredity क्या है, variations क्या है? Heredity is the transfer of gene, is the transfer of gene from one generation to its next generation, like the inheritance. Now, variation is the difference between parents and child. ठीक है. नाउ ज़्यादा बोर न करते हुए डायरेक्ट मेंडल के एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं. सो मेंडल 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट. मेंडल ने फर्स्ट ऑफ ऑल मेंडल सिलेक्ट 7 कैरेक्टर ऑफ द pea plant. Pea plant botanical name is Pisum sativum as shown in the table. Now these 7 characters are stem height, seed color, seed shape, pod color, pod shape, flower position, flower color, seed coat color is exceptional or optional. Now for his first experiment he select the first character for his first experiment, that is the tall and the dwarf. For his first experiment he select the first character, that is the pure tall as an female parent, pure dwarf as an male parent. Before crossing उन्होंने इन दोनों प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को लिया, दैट इज़ दी फ्लावर इज़ एन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एवरी प्लांट एज ऑल नोज. अज्यूम ये एक फ्लावर है, दिख तो नहीं रहा, ये है
इसका सेंट्रल पार्ट, दैट इज द कार्पल. कार्पल इज एन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एन फ्लावर. एंड ये बेसल पार्ट, दैट इज द stamen. Stamen is a male reproductive part of an flower. जिस फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों भी पार्ट्स प्रेजेंट है उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं. जो कि पी प्लांट बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो वो दोनों सेल्फ पॉलिनेशन कर सकते हैं. सेल्फ पॉलिनेशन दोनों में अगर हो जाएगा तो कैरेक्टर इनहेरिट कैसे होगा. तो इसलिए मेंडल ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले इस फ्लावर में इमास्कुलेशन किया. इमास्कुलेशन इज द रिमूवल ऑफ स्टेमन. रिमूवल ऑफ स्टेमन ऑल दी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज दी फ्लावर में से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को निकाल दिया. तो क्या होगा, कैरेक्टर इनहेरिट हो पाएगा. आर्टिफिशियल क्रॉस पॉसिबल हो पाएगा बाय द डस्टिंग ऑफ पोलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा फ्रॉम द मेल पेरेंट. अब इस एक्सपेरिमेंट से मेंडल ये एक्सेप्ट कर रहे थे कि ये क्रॉसिंग करने के बाद उन्हें आधे बच्चे यहाँ फिर टॉल मिलेंगे, यहाँ ड्राफ्ट मिलेंगे, आधे टॉल मिलेंगे, यहाँ आधे ड्राफ्ट मिलेंगे. लेकिन जब उनको F1 जनरेशन मिली, ही बिकेम शॉक. अब देखते उनको ऐसा क्या मिला. तो फिनोटाइप है प्योर टॉल प्योर ड्राफ्ट. जीनोटाइप कैपिटल T स्मॉल t. गमिट्स कैपिटल T स्मॉल t. इन दोनों में क्रॉस हुआ, मिला हाइब्रिड टॉल इंटरमीडिएट कैरेक्टर F1 जनरेशन. अब वो शॉक हो गए कि ड्राफ्टनेस कहाँ चली गई. ये सारे क्वेश्चन जानने के लिए उनने फिर से सेल्फिंग की, इस हाइब्रिड टॉल में सेल्फिंग की. इसके गमिट्स कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल T स्मॉल t. सॉरी, that is the tall ड्राफ्ट. F2 जनरेशन मिला. F2 जनरेशन के बाद वो सेटिस्फाई हुए क्योंकि यहाँ पे ड्राफ्ट कैरेक्टर इनहेरिट हुआ, ड्राफ्टनेस उन्हें मिली. अब देखते हैं कि फिनोटाइपिक रेशो क्या होता है, जीनोटाइपिक रेशो क्या होता है. फिनोटाइपिक रेशो, जीनोटाइपिक रेशो. phenotype is the external makeover and genotype is in genetic makeover. यहाँ पे ये जो है ना टॉल ड्राफ्ट, ये पूरा जैसा कि जैसा फिनोटाइप में लिख दूँ. रेशो में टॉल एंड दी ड्राफ्ट क्या मिला 3:1. यह है फिनोटाइपिक रेशो. अब यहाँ पे जेनेटिक मेकओवर दैट इज़ दी ये कैपिटल टी स्मॉल t, ये पूरा रेशो में यहाँ पे जीनोटाइप में लिख दूँ. क्या मिला 1:2 2:1. ये हो गया जेनेटिक मेकओवर. अब देखते हैं कि मेंडल ने पी प्लांट ही क्यों सेलेक्ट किया. और भी तो बहुत सारे प्लांट्स हैं, पी प्लांट ही क्यों, क्या है उसमें स्पेशल बात. बहुत बच्चों के मन में क्वेश्चंस आते हैं कि शायद उनको पी प्लांट अच्छा लगता हो, शायद उनके गार्डन में सिर्फ पी प्लांट अवेलेबल हो. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लेकिन इससे क्लियर हो जाएंगे. सिलेक्शन ऑफ मटेरियल. मेंडल मेड अ वेरी वाइज चॉइस of experimental material. He selected garden pea as an Pisum sativum for his experiment because of the following characteristics. First, garden pea is an annual plant. Annual plant है
एंड कम्प्लीट्स द लाइफ साइकिल विद इन द 3 और 4 मंथ्स। 3-4 महीने में वो अपना लाइफ स्पेन कंप्लीट कर सकता है। तो एक ही साल में 2-3 जनरेशन देखने को मिल जाते हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी एक्सपेरिमेंट भी कंप्लीट हो सकता है। इट इज़ अ स्मॉल हर्बेशियस प्लांट दैट प्रोड्यूसेस मैनी सीड्स। हर्बेशियस प्लांट्स है, सीड्स भी बहुत सारी अवेलेबल है। एंड सो ही कुड ग्रो थाउजेंड्स ऑफ पी प्लांट्स इन ए स्मॉल प्लॉट। स्मॉल से इस छोटी सी जगह में भी बहुत सारे प्लांट ग्रो कर पाएंगे, तो ये भी बहुत अच्छा है कैरेक्टर। इट इज़ अ नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटिंग, बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो सेल्फ पॉलिनेटिंग है। एंड वॉज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ मैनी वेराइटीज़ विद द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। अभी बहुत बार देखा हमने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मन में, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है क्या। तो क्या होता है, हम देखते हैं कुछ लोग बहुत ही काले होते हैं, कुछ लोग बहुत ही गोरे होते हैं, कुछ लोग सांवले होते हैं। तो ये जो बहुत ही काले और बहुत ही गोरे का जो ये कॉम्बिनेशन है ना, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट बोला जाता है इन्हें। तो मेंडल ने पी प्लांट में ऐसा ही कुछ देखा, टॉलनेस देखी या ड्राफ्टनेस देखी, इंटरमीडिएट कैरेक्टर नहीं दिखा उन्हें। येलो दिखा या ग्रीन दिखा, इंटरमीडिएट कैरेक्टर दिखा क्या। तो ये भी एक कैरेक्टर है ये भी एक रीज़न है पी प्लांट सेलेक्ट करने के पीछे कि उन्हें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर दिखे, जैसे कि टॉल, ड्राफ्ट, येलो, ग्रीन एंड एक्सेट्रा। देयर वर नो इंटरमीडिएट कैरेक्टर, सांवले वगैरह नहीं दिखे, बीच के कैरेक्टर नहीं दिखे। दो फ्लावर्स आर नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटिंग, दे आर लार्ज इनफ फॉर ईजी इमास्कुलेशन। इमास्कुलेशन की प्रोसेस हमने देखी, रिमूवल ऑफ स्टेमन रिक्वायर्ड फॉर द आर्टिफिशियल क्रॉस एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। सो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। और गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इससे भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने के लिए मिलती जाए। थैंक यू, बाय बाय।